Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon to all of you. Or unmute to. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. We were doing operations on whole numbers. Addition and subtraction we have done day before yesterday or yesterday. Today I'll start multiplication of whole number. आज हम लोग multiplication of whole numbers करेंगे. Natural numbers and whole numbers. Your topic is natural numbers and whole numbers. बच्चे बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today's topic is multiplication Yes, on ma'am. whole. Okay. Multiplication of whole numbers. There are certain properties based on multiplication. Multiplication पर कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग उसी को प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे. ओके First one is commutative property of multiplication. First one is commutative property of multiplication. Commutative property means if A and B are two whole numbers, then A into B is equal to B into A. If A and B are any two whole numbers, then A into B is equal to B into A. Suppose A is equal to 2 and B is equal to 3. So 2 3s are 6. When we change its order, 3 into 2. 3 into 2 is equal to 6. Okay. So A into B is equal to B into A. This is called commutative property of multiplication. Next one is commutative property. Commutative property. Commutative property of multiplication. ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे if first one, if A and B are any two whole numbers, then A into B is equal to B into A. A into B is equal to B into A. Okay. इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. सपोज 7 into 9. एग्जाम्पल 7 into 9 is equal to क्या होता है? 63 is equal to 9 into 7. Both are equal. This property is called commutative property of multiplication.
Next property is associative law of multiplication. Associative law of multiplication. या फिर हम लोग पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो. मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो. Suppose a in any whole number. If a is any whole number, when we multiply a by zero, a को zero से multiply करते हैं, what is the result? Any number multiply by zero is equal to zero. Zero. Okay. And multiplication by one. Multiplication by one. If a be any whole number, a क्या है? Any whole number है. A be any whole number. If we multiply a by one, any number multiply by one. अगर one से किसी भी number को multiply करेंगे, what will the result? If any number multiply by one, the result is the number itself. अगर किसी भी number को one से multiply करेंगे तो what is the result? Result हमारा क्या आएगा? Number itself. Number itself. Ma'am, itself. Okay. हाँ. Suppose 10 into 1. 10 into 1 is equal to 10. 10. 100 into 1. 100 into 100. 100. 100 into 0. बताइए क्या होगा? 100 into 0. 0. 0. Yes. ठीक है. अब उसी पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था, फिल इन द ब्लैंक्स था. एक्सरसाइज वर्कशीट 3 देखिए. वर्कशीट 3 है, वो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स है. वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ना? यस मैम. ना उसको तुम लोग कॉपी में कर लोगे, ठीक है. और उसी पे बेस्ड है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम. वर्कशीट कौन सा था? वर्कशीट 3. वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 4 है, तो वर्कशीट 4 का फिल इन द ब्लैंक्स यू विल डू. सारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कौन? एक बच्चा पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? पढ़िए तो. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. बच्चे पढ़िए. 489. हाँ, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए. 0. यस. 0. यस. Zero. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो. सेकंड क्वेश्चन. 745. तो क्या होगा? 741. 741. ओके. यस. थर्ड क्वेश्चन बताइए. थर्ड क्वेश्चन करिए. 27 multiplication 635 is equal to 635 multiplication 25. यस, करेक्ट. तो इस तरह से तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा. Yes, ma'am. फिल इन द ना. अब इसका अब एक बच्ची का वर्ड प्रॉब्लम है, वो बर्गर वाला, उसको पढ़ो तो. क्वेश्चन पढ़ो तो एक बच्ची. If the cost of one burger is 50.50, what will be the cost of 25 such burgers? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर? वन बर्गर का कॉस्ट क्या है? 50.50. 50 rupees. 50.50 डेसिमल के बाद Yes, ma'am. लेते हैं. हाँ. Cost of one burger is rupees 50.50. What is the cost of 25 burgers? जब 1 का दिया Yes, रहता ma'am. है और many का निकालना रहता है तो we will do multiplication. आर्टिकल का कॉस्ट दिया रहे, निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. Multiplication. ओके. हाँ. तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग स्टेटमेंट के साथ करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट के साथ करेंगे. के साथ. हाँ. तो स्टेटमेंट के साथ करने के लिए क्या है? वर्कशीट 4 है ये. क्वेश्चन नंबर 1. तो लिखिए कॉस्ट ऑफ वन बर्गर. कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज इक्वल टू कितना है? रुपीज 50.50. 50.50. हाँ.
50.50 is equal to rupees 50.50. Therefore, this is ये सिंबल तुम्हारा therefore का है और ये फर्स्ट वाला सिंबल है since का और नीचे वाला ये नीचे 2 डॉट और ऊपर 1 डॉट देते हैं. This is the symbol of therefore. Therefore, cost of 25 burgers. 25 burgers का कॉस्ट क्या होगा? 50.50 मल्टीप्लाई बाई 25. हाँ, अब यहाँ पे तुम लोग नीचे में डिवीजन ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शो करोगे. मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नीचे में शो करना है. मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को यहाँ पे शो करना है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए. 500, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 200, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 0 5 2 6 2 1. कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? कितने डिजिट के बाद डेसिमल है बताइए? डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद है. तो यहाँ भी हम लोग नीचे में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे. हाँ, तो therefore लास्ट में स्टेटमेंट लिखना. therefore cost of 25 burgers is equal to rupees 1262.50. Children, mute yourself. Mute yourself. बहुत आवाज आ रही है. Mute yourself and note down. Mute yourself. कौन है? जी कुमारी. आदर्श राज, mute yourself. Note down क्वेश्चन नंबर 2. ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे नोट कर लीजिए. और अगर ये हो गया तो कोई एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चे पढ़ो. In a library, there are 27 book shelves. If there are 479 books on each book shelf, find the total numbers of books in a library. हाँ, तो कहता है in a library there are 27 bookshelves. What is the number of bookshelves? कितने हैं bookshelves? 27. And each bookshelf has 479 books. हर एक बुक शेल्फ पे कितने बुक्स हैं बताइए? 479. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो हम लोग इसको करेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन वन शेल्फ. नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक शेल्फ कितना होगा? इसको मिटाएं. ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? नो मैम. जल्दी नोट करो. जिसका नहीं हुआ वो नोट कीजिए. जल्दी नोट करो. और जिसका हो गया है वो आगे का क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. जिसका हो गया है वो अपना अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. स्टेटमेंट आई एम टेलिंग कॉस्ट ऑफ number of books in one bookshelf is equal to 4779. Therefore number of books in 227 bookshelves. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. ये हो गया? जल्दी बताओ, हो गया? Yes, ma'am. बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, तो लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक शेल्फ. एक बुक शेल्फ पे कितने बुक्स हैं? नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक शेल्फ इज इक्वल टू 479.
Therefore, number of books in 27 bookshelf. 27 bookshelf में कितने होंगे? 479 मल्टीप्लाई बाई 27. इसको 27 से सारे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे. टू मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस शो करना है. 479 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए. चलिए 479 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे. Ma'am, please side. Thank. Ma'am, 1,293 are. Okay, this is your answer. Whatever the 193. 7 9s are 63. 7 7 मैम मेरा भी वही आ रहा है. Nine hundred thirty-three. 12,933. 12,933. 12,933. 12,933. 12,933. ट्वेल्व 12,933. कितने बच्चों का 12,933 आ रहा है? मैम मेरा. हाँ, Ma'am, मेरा. तो लास्ट में मेरा। लिखिएगा therefore Ma'am, मेरा. therefore मेरा number भी। of bookshelf. लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा number of books in 27 bookshelf is equal to 12,933. ओके, और कोई क्वेश्चन बचा है इसमें? Yes, ma'am. अच्छा, तो एक क्वेश्चन पढ़ो. Ma'am, question number 4. A store has 432 432 dresses for girls. If the store cost has of 432 each dress dresses is rupees वो ऐसे 500, सारे बच्चे एक साथ पढ़ोगे तो नहीं आवाज आएगा. find the cost of एक one बच्चा पढ़ो, dresses. ओनली वन स्टूडेंट. A store has 432 dresses for girls. store If the has cost of each dress 83.50. Find the cost. Ma'am, स्टोर है 593.50 टोटल होगा. नंबर ऑफ ड्रेसेस 583.50. 0.50 ना. डेसिमल के बाद डिजिट का नाम बताइए. Yes मैम. तो नंबर ऑफ क्या है? कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस क्या होगा? 583.50. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाँ, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज of rupees 583. Is equal to rupees 583.50 multiply by 432. 583.50 को 432 से मल्टीप्लाई कीजिए. चलिए बच्चे अपने से कीजिए. परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस.
That will be the cost of 432 dresses. 2,51,856. All right. Two fives are 10, 111. Three eights are 24. देखिए कितना आ रहा है, 0 0 2 25 होगा 25 होगा, देखते हैं। मैम 165 की जगह पर 75 होगा। ओके देखते हैं। 3 3 9 10, 3 8 24 25, 3 5 यस करेक्ट, गुड। 7 5 12, 6 1 7, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 7 plus 3 10, plus 1 11 12, 5 2। डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो इसको हमने पुट किया तो कितना हो गया, 2,52,072। देयरफॉर लास्ट में लिखिएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस इज इक्वल टू रुपीज 2,52,072। ठीक है, ये तुम्हारा एक वर्कशीट 4 इज कंप्लीटेड। वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्कशीट 5 करेंगे। वर्कशीट 5 में मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी है। वर्कशीट 5 तुम्हारा जो है एक और प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़े हो? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो पहले हम लोग एडिशन को समझ लेते हैं। तो लेट ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर, देन let A, B, C are any 3 whole number. Then A into B plus C, जब हम लोग A into B plus C is equal to A into B, A multiply B plus A multiply C, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। तो A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई A बाई B प्लस A इंटू C। ठीक है, सेपरेटली। अब उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव अगेन ऑल्सो इसी तरह से, अगर ये सब्ट्रैक्शन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, also if A, B, C are any 3 whole number,
नंबर। अब सब्ट्रैक्शन के केस में a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एडिशन था तो हमने प्लस दिया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हमने माइनस का साइन दिया है, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये दिस लॉ इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हो गया तुम्हारा एडिशन का क्वेश्चन और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसी पे एक्सरसाइज करेंगे। अब इसी पर देखो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे एक क्वेश्चन करो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको नोट कर लिया सभी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बुक में तुम्हारा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना, मोर अबाउट दिया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को नोट कर लेना। ओके, अब उसी पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब उसी पे एक एग्जांपल है, जैसे कि 638 मल्टीप्लाई 42, नंबर क्या है? वो तुम्हारा देखिए ना, बुक में देखिए ना, वर्कशीट 4 के बाद जो है वो पेज नंबर वही होगा। 658 प्लस मल्टीप्लाई 42 प्लस 658 मल्टीप्लाई 158। ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने अपने से एक एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ाया था ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसी के प्रॉपर्टी पे हम लोगों को करना है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये देखो प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है, बताओ तो इस क्वेश्चन में। 658 658 है जो प्लस के लेफ्ट, 658 हमारा लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 658 को हम लोग बाहर निकाल दिया। ठीक है, तब बताओ यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बच गया। सब 658 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, कौन सा ऐसा नंबर बच गया, क्या बच गया? 42। और प्लस के और प्लस इधर राइट साइड में क्या बच गया? 158। ये दोनों को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब ये 658 मल्टीप्लाई, अब 42 प्लस 158, दोनों को प्लस करो, कितना आता है? 200। 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 10 और ये 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 8 जा 16 and 2 5 जा 10 और 11 and 2 6 जा 12 13। अब ये 2 0 आ गया, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर लेते हैं। ये तो हमने एडिशन पे बताया तुम्हें क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं, इसको नोट कर लो। अब एक और एग्जांपल ले रही हूँ जो कि सब्ट्रैक्शन पर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ देखो 232 मल्टीप्लाई 187 माइनस 232 मल्टीप्लाई 87। ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बताओ कि माइनस है ना, माइनस साइन के लेफ्ट साइड में और माइनस साइड के राइट साइड में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है, बताओ। 232 तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो बचा क्या अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा? लेफ्ट साइड में क्या बचा? 187 और 87 माइनस मैम 187 और माइनस का भी तो सिंबल देंगे ना मैम 87। हाँ, दोनों को माइनस करो। 232 मल्टीप्लाई 187 माइनस करेक्ट आंसर मैम 100। 100। अब दोनों को माइनस करो, मल्टीप्लाई कीजिए।
Ma'am, 3, 2, 2, 3, 2, 0, 0. double 0. This law is called distributive law of multiplication over subtraction. ये लॉ क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? हाँ Yes, ma'am. अच्छा, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं रीअरेंजमेंट पर. देखो तो वर्कशीट 5 निकालो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तुम्हारे पास? देखो तो पढ़ो कोई बच्चा. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Filling in the flowing blanks by using different properties of multiplication. ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम लोग कर लोगे. फिल इन द ब्लैंक्स, ये तुम्हारा होमवर्क है. फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा ना? Yes, अब ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ो. Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 2 से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2. Rearrange the numbers and then multiply them. Multiply 400. Rearrange the number and multiply them. ये क्वेश्चन हो गया, इसे रब करूं मैं? पहले बताओ बच्चे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. रीअरेंज द नंबर एंड मल्टीप्लाई देम. सबसे पहले उसको रीअरेंज करना है. रीअरेंज करना है, देन इट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई. पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? फर्स्ट Ma'am, Type 8. आवाज नहीं. multiplication. सामने के आगे बुक रखो. तो बुक दिखाओ तो. बुक दिखाओ. हाँ दिखाओ बेटा, बुक दिखाओ. Ma'am, दिखाओ. Ma'am दिखा रहे हैं. Ma'am, दिखाओ. दिखाओ. 5 multiply 488. Multiply 125 multiply 488 multiply. एक बार और दिखाओ. 8. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, एक इसी का सी था. सी क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं. 16 multiply 125 into 8. चलो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज दिस नंबर. देखो रीअरेंज करने में इस तरह से ध्यान देना कि वो दो नंबर को इस तरह से लेना है कि उसको प्रोडक्ट करने पर तुम्हारा यूनिट प्लेस में 0 आए. रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि दो नंबर को इस तरह, जैसे 488 मल्टीप्लाई. सबसे पहले हम लोग 125 into 8 को लेते हैं. हम लोगों ने क्या लिया? दो नंबर को एक साथ लिया है. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 125 मल्टीप्लाई 8 को साथ रखो. 125 मल्टीप्लाई 8 को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ रखेंगे. ठीक है. अब ये हो गया तुम्हारा 488 मल्टीप्लाई. अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करेंगे. 8 into 125 कितना होगा? 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 1000. यस. नाउ 488 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा? उस पे 000 मल्टीप्लाई कर दो. ये 488 पे 1000 और ऐड कर दो. ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से दो नंबर को लेना है कि दोनों को प्रोडक्ट करने पर यूनिट प्लेस में क्या आए? 0 आए. रीअरेंज. हाँ, रीअरेंज का मतलब है कि दो नंबर को इस तरह से लेना है, अरेंज करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस में क्या आए? 0 आए. ओके. अब चलो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे दिखाओ. अभी टाइम है ना? चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा. इसका क्वेश्चन नंबर बी दिखाइए. कोई बच्चा भी दिखाओ क्वेश्चन.
बी Yes, दिखाओ, ma'am. Yes, ma'am. दिखाओ क्या है। 625 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 इंटू 4, 625 है ना कि 425 है? 625। Ma'am, 625 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 इंटू 4। चलो ठीक है, अब हटा लीजिए। ठीक है बेटा, 20 मल्टीप्लाई 5 है ना। चलिए मैम। हाँ Ma'am, 20 multiply 4. हाँ, तो इसमें दो नंबर को इस तरह से दो दो का, इसमें देखो देयर आर फोर नंबर्स। मल्टीप्लाई में कितने नंबर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 625 मल्टीप्लाई 20, इसको एक साथ रखो, एंड मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4, इसको एक साथ रखेंगे। देखिए अब 625 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, 12,500 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100। 100. अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 5 00 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और इसमें ऐड कर दो। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डाउन, Yes, नोट ma'am. डाउन। और आगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 5, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, and do worksheet 4 in fair copy, maths fair copy. ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am.